The delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with everyone. और अगर लेडी ने उस पर एलिगेशन लगाई हैं, फेक एलिगेशन, तो ये दोस्तों काफ़ी निंदनीय है। फिर इस लेडी पे भी एक्शन होना चाहिए, इस लेडी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जोमेटो बॉय इसमें सही नहीं साबित होता है तो इस लेडी को भी एक्शन होना चाहिए। अगर इसने एक गलत तरीके से एक गरीब पर जो है हाथ उठाया, उस पर चप्पल उठाई, तो ये उसने भी गलत किया है। तो दोस्तों अगर कल तक आपने उस लेडी का साथ दिया था और जोमेटो बॉय सही निकलता है तो आप उसका साथ दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। कल से एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है दोस्तों कि जोमेटो बॉय ने एक लेडी को मारा और लेडी को इंजर्ड कर दिया, उनकी नाक फोड़ दी, उन पर दरवाज़ा पटका। हमने कल इसके बारे में बताया था कि उस इंसान को जेल होनी चाहिए। तो आपको बता दें वो गिरफ्तार हो चुका है। तो आप आज हम उसकी स्टोरी भी बताएंगे कि उसने क्या बयान दिया है, पुलिस को क्या स्टेटमेंट दिया है। तो आप डिसाइड करना दोस्तों इन दोनों में से कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस लेडी ने जो वीडियो कल बनाई थी, जो पोस्ट की थी, एक बार उसकी छोटी सी क्लिप देखते हैं क्या उन्होंने वीडियो में बताया है। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with everyone. Guys, let me tell you the story, the entire story. I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly, following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing happened, and then the Zomato delivery guy came here. What he did was he was so rude. He was so freaking rude. And because I have sushi with me, so I usually don't open my full door, so I was just talking him through a small slit from my door. I tried shutting my door so that he could not harm me, but before that he pushed the door, and he was so huge. He pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house and then he punched me on my face so that I don't get back to him, and he ran away. So guys, after that thing happened, I am at the hospital and this is my current situation, and it seems like after the x-ray my bone is broken, so we need to do a surgery for the same, and I can't talk because the moment I start talking my eyes are starting watering and nose starts bleeding. So this is the update as of now. And also thank you so much for Bengaluru, Karnataka police. Like the police station I visited, they were like so humble and gentle, and they literally took care of my concern and they listened to me. And I was so scared after the incident what happened. So they were like, till the time we are alive, madam, you need not worry about whatever is going on. So that's the update, and I have all the FIR copy and the doctor prescription where it says it is a major damage which has happened to me. Share this video as much as possible so that this does not happen to anybody out there. And thank you. तो दोस्तों वीडियो में साफ नज़र ये आ रहा है कि लेडी ये बता रही है उन्होंने एक ऑर्डर किया था। आपको बता दें कि सबसे पहले कि लेडी जो है ये मॉडल भी है, बेंगलोर में ये मॉडलिंग करती हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने जो ऑर्डर किया था जोमेटो से तो वो लेट हो गया, तो इन्होंने कर दिया था ऑर्डर कैंसिल, जैसा कि इनका कहना है वीडियो में। तो उसके बाद ये हुआ, डिलीवरी बॉय को जो है आ गया गुस्सा, तो उसने जो है दरवाज़ा उनके मुंह पे पटक दिया और उनकी नाक को इंजर्ड कर दिया घूसा मार के। और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कराई, FIR कराई बेंगलोर थाने में। जोमेटो को ट्विटर पर टैग किया और ये वीडियो हो गई जी वायरल होने के बाद आप सबको पता है महिला की हेल्प में बहुत सारे लोग आ गए कि जो भी हुआ गलत हुआ, जोमेटो बॉय ने गलत किया काफ़ी। और सीधी सी बात है, सब गलत है, उसको जेल होनी भी चाहिए अगर उसने ये सब किया है। तो हमने भी इस मुद्दे को उठाया था और आपको बोला था कि उस बंदे को जेल होनी चाहिए और उस जैसे और लोगों को भी जेल होनी चाहिए। और लेकिन अब जब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो उसका एक स्टेटमेंट सामने आया, एक बयान सामने आया है। उसने ये बताया है जब वो डिलीवरी करने गए थे
तब तक ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ था और काफ़ी लेट हो गया। तो लेडी ने कहा मैं ऑर्डर कैंसिल कर रही हूँ, अभी तुरंत के तुरंत मुझे रिफंड दो तुम। तो उसने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है, आप जोमेटो में बात करें। लेकिन फिर जो है लेडी उससे पहले तो मुंह से ही लड़ाई करने लगी, मुंह से मतलब कि गाली गलौज करने लगी, जैसा कि जोमेटो बॉय का कहना है। लेकिन उसके बाद ये हुआ, थोड़ी देर बाद जो है लेडी उसको चप्पलों से मारने लगी, चप्पलों से मारने लगी। तो उसके बाद डिफेंस में जो है जोमेटो बॉय ने लेडी पे जो है हाथ उठा दिया, जैसा कि स्टेटमेंट में जोमेटो बॉय ने बोला है। तो दोस्तों लग तो एक फिल्मी ड्रामा ये लग रहा है। एक तरफ से कल देखा गया था कि लेडी ने बताया कि इस तरीके से उनके साथ हुआ, जोमेटो बॉय ने मारा उनको और इस तरह इंजर्ड किया। और इस पर जोमेटो ने भी अपॉलॉजी जो है दिखाई थी, अपनी एक ट्वीट किया था उन्होंने भी इसके बदले में, कि उसमें लिखा था साफ कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस पर कड़क एक्शन लिया जाएगा और जो जिसने ये किया है उसको गिरफ्तार किया जाएगा या जोमेटो की तरफ से उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो गिरफ्तार तो हो गया है दोस्तों, वो उसका नाम है कामराज और जो लेडी थी उनका नाम है हितेशा चंद्रानी, जो कि एक मॉडल हैं। तो दोस्तों आपने दोनों साइड सुन ली हैं, जो कि उन्होंने बताया था कि उनको किस तरह हिट किया गया और जोमेटो बॉय ने जो कि बताया कि उन्होंने हिट नहीं किया, उन्होंने एक सेल्फ डिफेंस में अपनी रक्षा की थी। तो ये कहानी कहाँ तक सच्ची है कहाँ तक झूठी है, आप लोग डिसाइड करो, क्योंकि जिसके ज़्यादा चोट लगी वो फिलहाल लेडी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जोमेटो बॉय एक पॉइंट पे सही हो, जिस उसने बयान एक दिया है पुलिस को, लेकिन हो सकता है वो भी झूठ बोल रहा हो। दोस्तों कुछ भी हो सकता है, जब तक पूरी परतें नहीं खुलती हम इंतजार करेंगे और जानेंगे कौन सच्चा है कौन झूठा। लेकिन इसके आधार पर आप लोगों को क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और अगर लेडी ने उस पर एलिगेशन लगाई है, फेक एलिगेशन, तो ये दोस्तों काफी निंदनीय है। फिर इस लेडी पे भी एक्शन होना चाहिए, इस लेडी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। जोमेटो बॉय इसमें सही नहीं साबित होता है तो इस लेडी को भी एक्शन होना चाहिए। अगर इसने एक गलत तरीके से एक गरीब पर जो है हाथ उठाया, उस पर चप्पल उठाई, तो ये उसने भी गलत किया है। तो दोस्तों अगर कल तक आपने उस लेडी का साथ दिया था और जोमेटो बॉय सही निकलता है तो आप उसका साथ दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए तुरंत, जिससे कि पता चले और लोगों को भी कि कहाँ क्या पूरी कहानी थी, क्योंकि अभी तक लोगों को आधी कहानी पता है। लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि लोगों को आगे की कहानी पता चले कि जोमेटो बॉय ने भी क्या बयान दिया है और क्या थोड़ी बहुत परतें खोली हैं उसने भी। तो इस वीडियो को आप शेयर करना शुरू कर दीजिए अब।